So hi, good evening everyone. How are you doing all? अगर मेरी वॉइस एंड मेरा वीडियो क्लियर है, जल्दी से वन टाइप करें, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन. टाइप वन. Yes. Okay, I'm getting the response. Thank you so much. Again, welcome to everyone and thank you so much for joining us for today's session. Okay, so myself सुमन खान, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ. ओके आज मैं आपकी होस्ट बनी हूँ. ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने टीम को थैंक्स कहना चाहती हूँ दिल से, एंड इवन माय मेंटोर साइमन डेविडसन को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं. एंड जब मैं अपॉर्चुनिटी को समझ रही थी 2 months बैक, तब आई वाज वेरी शाई पर्सन. आई वाज नॉट इवन टू टॉक विथ एनी पर्सन. मैं बहुत शाई किस्म की लड़की थी. मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी. बट नाउ you can see me how it's transformation आप देख सकते हैं. It's completely changed my life and इतना confidence आ गया that I can talk with 100 people. ऐसे सामने से मैं बात कर सकती हूँ just because of this platform. So आज हमारे जो guest speaker है, his name is Sanket Miller, and guess what? His age is just 18 years, guys, and he's the most youngest person in our team who is doing great. Okay. ये वो Okay. समझ गया क्या ये. So he can do the business at the age of 18 years. Okay, so see, we can do wonders, right? So I don't want to waste more time. I would like to introduce our guest speaker, Sanket Nile. I want okay. Yeah. Your voice is not clear. Someone has unmute myself also. No, you're not mute. We can hear you. Okay, Sanket, you're mute. You're like, you unmute yourself. Your voice is not clear. No. Now you're mute. Yeah. Just keep on speaking, Sanket. Sanket, can you hear me? We cannot hear you, Sanket. No, your sound is not there. Yeah, do one thing. आप मीटिंग को लीव करके फिर से रिजॉइन कर लो. So he'll back in just 1 minute. No issues. It happens. Technical problem हमारे and हमारे हाथ में नहीं होता. We have to deal with it. Okay, so be patient, spread positive vibes, and wait for him. Suman, something which is very fantastic is Sanket is just 18. Yeah. While at that age, people are on Snapchat, this chat, that chat, and hardly doing any work, but just हम लोग बोलते बाप की कमाई. And this guy is taking this opportunity of starting a business at 18. Hello. So I think we must salute him. Yeah, I think it's amazing. Yeah, I think his mic is off now. Sanket, yes, start your mic again. Let me see if I can see. So stay tuned. He'll be back in just few minutes. Yeah, I think he's logging in again. Yeah, just wait for a second, guys. Yeah. In the meantime, we can discuss because there's one more good news that our offices have opened. Sanket, we can see your photo, but we can see your video, but we can't hear your sound. Your sound is not coming. Okay, I have to make you the host. Okay. Host, yeah. Yes, Sanket. अब आ रही है मेरी वॉइस? Perfect. Yeah. So Great. again, जी welcome. Thank you so much. Yeah. दोस्तों थोड़ा सा आई थिंक हेडफोन के साथ कोई अभी क्या बताए. चलो. तो मेरी वॉइस अभी प्रॉपर आ रही है सब लोगों को? Perfect. ओके ग्रेट. सो मैं अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. मैं डायरेक्टली आप लोगों को मेरे स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूँ. सो विल डिस्कस.
Okay, so good evening all of you. I hope you are all doing great. Myself संकेत ने एंड मैं अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बट उसके पहले मुझे एक बात बताइए चैट बॉक्स में वन टाइप करके, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरा स्क्रीन अगर अच्छी तरीके से दिख रही होगी, देन प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स. इफ यू गाइस गेटिंग माय वॉइस एंड माय स्क्रीन इज क्लियर, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स. ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच. या तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप अपना टाइम निकाल करके इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हो. तो नाउ विल स्टार्ट. बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आप ना अपने मोबाइल फोन को आने वाले 45 मिनट्स तक ना अभी साइलेंट मोड पे कर देना है. बिकॉज कोई भी नोटिफिकेशन, अनवांटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं व्हाट्सएप के, कोई कॉल्स आएंगे, कोई मैसेज आएंगे, हमें वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं. और अभी हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. आप भी अगर किसी प्लेस में ऐसे बैठे हो कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा, तो प्लीज आप ऐसे कुछ प्लेस में बैठिए कि जहां पर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ नेक्स्ट 40 टू 45 मिनट इस सेशन को अच्छी तरीके से अटेंड कर सकते हो, ताकि चीजें आप समझ पाओ. और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. माई सेल्फ संकेत ने एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द फ्रीडम ग्रुप. एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी आप मुझे कह सकते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड. एंड इस ब्यूटीफुल बिजनेस को मैंने ऑलरेडी 2 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे भी ग्रो किया था, जहां पर मैं डॉलर में भी अभी इनकम को अर्न कर रहा हूँ. तो इस बिजनेस को आप कहीं पर भी एक्सपांड कर सकते हो. और जैसे बहुत सारे लोग इस सेशन को पहली बार अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, राइट? वैसे ही मैं भी एक दिन था कि जब मैं पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहा था. वो दिन था मई 2020 में. मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बिकॉज तब बहुत कंफ्यूजन था. मैंने जस्ट एक एक्साइटमेंट करके इस सेशन को अटेंड किया था, बिकॉज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल करते ही रहते हैं. वैसे ही मैं भी स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो मुझे मिली. और उस वीडियो का टाइटल था कि कॉलेज ड्रॉप आउट गाय मेक्स 3.83 लाख रुपीज पर मंथ. और वो जो वीडियो का जो टाइटल था वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा. मैंने उस वीडियो को पूरी तरीके से देखा. फिर हमारे जो मेंटर मिस्टर साइमन डेविडसन, उनके साथ मैंने कनेक्ट किया, उनको पूछा कि ये क्या चीज है, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ एंड एवरीथिंग. और फिर उन्होंने एक जूम मीटिंग करी. मुझे अच्छी तरीके से इस पूरे प्लान को अच्छी तरीके से समझा, इस पूरे अपॉर्चुनिटी को मुझे एक्सप्लेन करके दिया. बट मैं सही बताता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती. मुझे सिर्फ दो तीन ही चीजें क्लियर हुई थी कि एक तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, दूसरी चीज कि मुझे यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तीसरी चीज ऐसी थी कि जहां पर मुझे कोई टाइम मैनेज करने का लाइक हम हेडेक नहीं बोल सकते, बिकॉज जो टाइम अभी पहले हम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एंड एनी अदर साइट्स के ऊपर, हमें वही टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जस्ट उसे यूटिलाइज करना है. और बचपन से ही चाहता था कि कुछ अलग करना है, सोसाइटी से डिफरेंट करना है, ये माइंड में पहले से ही था. बिकॉज मैं देख रहा था कि हमारे फैमिली में कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं था सर. सब लोग जॉब ही कर रहे थे. बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली का एक मोटिव होता है, एक माइंडसेट नर्चर किया जाता है स्टार्टिंग से, चाइल्डहुड से, कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद आपको एक जॉब करनी है, जॉब करने के बाद आपको अपने लाइफ में सेटल होना है. बट जॉब करके कभी भी आदमी सेटल नहीं होता, ये मैं समझ रहा था. मैं देख रहा था कि हमारे फैमिली में, रिलेटिव्स में जो भी बंदे जॉब कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल करे. और मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल बिल्कुल नहीं चाहिए था. मेरे को अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, कि जहां पर कुछ सालों की मेहनत जरूर करेंगे 2025 तक, बट उसके बाद ना फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री होना, बिल्कुल फ्री होना चाहता था. बट जॉब से तो हो नहीं पा रहा था, पता था. बिकॉज अगर किसी का नहीं हो रहा है तो अपने का भी नहीं होगा. वो कोड भी है कि अगर आपको कुछ अलग करना है ना, तो आपको भीड़ से भी अलग निकलना पड़ेगा. जो लोग सब कर रहे हैं और वो अगर आप भी करोगे, तो उनको जो मिल रहा है वही आपको भी मिलने वाला है. तो वैसे मुझे पता था, सो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया. और फिर फैमिली के साथ जब डिस्कशन किया, तब रिजेक्शन आए, जो स्टार्टिंग का फेज होता है हर बंदे का, कि भाई थोड़े से रिजेक्शन आए, थोड़े से चैलेंजेस आए, मेरे साथ भी वो सारी चीजें आए. बट मैंने एक बात अपने आप से हमेशा कहता रहा कि whenever we go on the path of fulfilling our dreams ना, we do not have any option. हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि कल करे, परसों करे, वो आ जाए, ये दोस्त आ जाए, फिर हम साथ में मिलकर करें. मुझे पता था भाई सपने मेरे हैं, लाइफ मेरी है, मुझे अपना फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. मैं अकेला निकलूंगा, कोई है साथ में, कोई नहीं था, कुछ पता नहीं था. जस्ट साइमन सर बोले चल स्टार्ट तो करना है तुझे. मैंने स्टार्ट किया, और साइमन सर के सपोर्ट की वजह से मैंने 2 मंथ के अंदर अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ग्रो कर दिया एट द एज ऑफ 18. तो दोस्तों देखिए, अगर मैं अभी आपको फ्रीडम ग्रुप के बारे में बताता हूँ कि फ्रीडम ग्रुप बेसिकली है क्या. दोस्तों फ्रीडम ग्रुप इज बेसिकली कम्युनिटी ऑफ एन यंग एंटरप्रेन्योर्स. एक एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसका सोल्यूशन उनके पास होता है. मनी का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन अगर वो दे सकते हैं आपको विथ प्रॉफिट, मतलब सामने वालों को भी फायदा हो, अपने का भी फायदा हो, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स. यहाँ पर हम आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल देते हैं कि जिसके जरिए आप अपने जो भी डिजिटल टूल्स है इसका इस्तेमाल करके अपने घर में बैठ करके बहुत बड़ी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हो. सिंपल सा मिशन है कि एम्पावरिंग पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. जैसा रहता है ना कि जॉब करो, इंजीनियरिंग करो, डिग्री करो, वैसा हमारा
मिशन आप कह सकते हैं डिग्री नहीं करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की और बढ़ना है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप अभी धीरे धीरे बहुत ग्रो होने वाला है, बिकॉज जॉब की तो पहले ही बहुत चैलेंजेस वगैरह है। उसके ऊपर भी हम आज डिस्कशन करेंगे कि जॉब में क्या चैलेंजेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या चैलेंजेस है, हर बंदा किस तरीके से पैसे अर्न करते हैं, हमारी क्या एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से इनकम पोटेंशियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, क्या हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, किस तरीके से आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो कि जहां पर आप अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हो। मैं तो बढ़ रहा हूँ और मैं पूरे टीम को लेकर के बढ़ रहा हूँ, आप भी किस तरीके से बढ़ सकते हो, उस सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जॉब। जैसे हम सब लोगों को पता होता है, हमें बचपन से कहा जाता है जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, पता अगर सच बताओ, और आप सभी लोगों को भी पता होता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है जॉब में चैलेंजेस है, फिर भी वो जॉब करते बिकॉज उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण फिर वही क्या करे, फिर अभी तो जॉब ही करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर होती है, बिकॉज 2020 से पहले किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन आएगा, कोविड आ जाएगा, वर्क फ्रॉम होम हुआ, बहुत सारे लोगों के जॉब्स निकल गए, बहुत सारे लोग आज की डेट को भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें होती रहती है जॉब में, बिकॉज हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर का कंट्रोल तो हमारे हाथ में नहीं है। जॉब सिक्योरिटी अभी मार्केट में बिल्कुल नहीं है, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है, एक्सपीरियंस पीपल को भी जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज सैलरी का कंसर्न आ रहा है, सामने वाले को जो जॉब देगा उससे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन है एवरीवेयर। तो वो सारी चीजें मैटर करती है, बंदा स्ट्रेस आउट हो जाता है अगर जॉब नहीं मिल रही है, फैमिली को कैसे सर्वाइव करे। बहुत लोगों की जॉब ऐसे हो जाते हैं फिर बहुत स्ट्रगल वाले, बहुत फिक्स शेड्यूल, फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते, यहाँ पर भी स्ट्रेस है, बोर हो जाते हैं वही करंट वर्क करके। कुछ लोग बिजनेस की ओर बढ़ते, फिर सोचते हैं यार कुछ अलग करते, कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए बढ़ते, फिर वो लोग स्टार्ट करते अपने बिजनेस को। अब बिजनेस की बात करें तो वो लोग स्टार्ट करते अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को। ट्रेडिशनल बिजनेस में अब क्या हो रहा है पता है, कंपटीशन बहुत बढ़ रही है, और कंपटीशन बढ़ेगी तो अपने आप जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो नीचे आने वाला है, वो आ रहा है, मार्केट की वो हालत है। ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपने देखा होगा अभी कोविड का पैंडेमिक था, मुझे परमिशन नहीं दे रही थी गवर्नमेंट नॉन एसेंशियल सर्विस को बिजनेस करने के लिए, उन लोगों का रेंट होगा, सैलरी होगी, उनके कुछ लोन लिए होंगे, बहुत सारी चीजें होती है, उनका ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ता ही जा रहा था, बिकॉज वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे बट एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। स्ट्रेस बंदा सबसे ज्यादा बिजनेस में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, बिकॉज यहाँ पर जेब से करोड़ों रुपए लगाए गए होते हैं उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, और जब वहां से प्रॉफिट नहीं होता ना, बंदे को रात को भी नींद नहीं आएगी, वो इतना स्ट्रेस इस बिजनेस में होता है। बट बिजनेस करो, जॉब करो, कोई भी चीज की आप शुरुआत करो, हर चीज की शुरुआत होती है एक ड्रीम के साथ, एक छोटे से सपने के साथ। हम जॉब करते क्यों करते, क्या चाहिए होता है हमें एट द एंड, मनी। बिजनेस करोगे खुद का, एट द एंड क्या चाहिए, सारी चीजें एग्री कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, सारी सारी चीजें आई एग्री विद दिस। बट एंड में मोटिव हर बंदे का एक होता है कि पैसे आने चाहिए, बिकॉज पैसे होंगे तो आप अपने सपनों की ओर बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, फिर सपने जस्ट अ विश। हर बंदे का ड्रीम होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में अचीव करे, मेरा तो है कि भाई कुछ साल मेहनत जरूर करूंगा 25-30 तक, बट उसके बाद ना फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़े। ड्रीम कार कई वो बहुत सारे लोगों की होती है, ड्रीम हाउस हो सकता है, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाना, वैकेशन पे जाना, वर्ल्ड टूर करना, अलग अलग कंट्रीज को विजिट करना, हर बंदे का ये सपना होते हैं, ये बेसिक ड्रीम्स होते हैं। आपके इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। और हम इन सारी चीजों की बात करें ना, तो एम्प्लॉय वाले जो लोग होते हैं, जो जॉब वगैरह वो सारी चीजें करते हैं, वो लोग दोस्तों इसके लिए पैसे मैनेज नहीं कर पाते, पहली चीज, बिकॉज इनकम का सोर्स उनके हाथ में नहीं होता है। बॉस जितनी सैलरी देगा उतनी सैलरी आपको लेनी पड़ेगी, अगर कुछ ज्यादा ऊंचा हुआ तो जॉब भी चली जाएगी, बिकॉज सिक्योरिटी तो नहीं है मार्केट में जॉब करने के लिए, बहुत लोग हैं, तो एक हम बोल सकते हैं एक बर्डन होता है। बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन पैसे अरेंज कर लेंगे बट वो टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज उनको पता होता है कि यार इतने में इतना खर्चा हो रहा है, तो मुझे इतने टाइम फिर से वर्किंग भी करना होगा ताकि मैं वो सारे पैसे को फिर से गेन कर सकूं, वो सारी चीजें होती है। आज के इस मीटिंग में ना मैं आपको इन सारों ड्रीम्स के ऊपर किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और अगर आपके में ऐसे ही कुछ ड्रीम्स होंगे तो आप उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बट जिन लोगों के पास कोई भी ड्रीम नहीं ना, उन लोगों के पास मेरी एक छोटी सी वीडियो है, शायद वो वीडियो देख करके आप लोगों के माइंड में जो भी ड्रीम्स हो गए, जो करंट सिचुएशन को देख करके, अपॉर्चुनिटी ना होने के डर के वजह से आपने उस ड्रीम को दबा के रखा हुआ, शायद उस वीडियो को देख करके आप फिर से उस ड्रीम को बाहर निकाल पाते हो। लेट्स सी। सपने देखते हैं, सपने देखना पसंद करते हैं। बहुत में हम में से हैं जो कहते हैं अरे यार छोड़ यार, क्या सपने अभी जिंदगी में बड़े, ये कैसे काटेंगे। दोस्त, ये जर्नी है, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो एक के बाद एक दिन काटते रहोगे। डियर प्लेयर, लर्न टू ड्रीम, बिकॉज योर ड्रीम इज गोइंग टू बी दैट पावर विच इज गोइंग टू टेक यू अहेड। रिमेंबर, आज का दिन बस कट जाए यार, बस किसी तरीके से कट जाए यार, दरवाजा नहीं खुलने वाला।
क्योंकि यू आर जस्ट हैंडलिंग दिस, इसी चीज को, अरे यार बताओ ये कैसे करूं, हाउ डू आई हैंडल दिस डे, हाउ डू आई हैंडल दिस क्लाइंट, दैट्स ऑल इट्स गोइंग टू बी. बट व्हेन यू ड्रीम, देन यू हैव अ विजन, and that's what powers you, and that's what I'm inviting you to. Rule number 1, open your brains to dream. सपने देखो, क्योंकि एक जिंदगी है दोस्त, एक ही जिंदगी है, और उस एक जिंदगी में सपना देखना आपका हक है, और उसे पूरा करने का तरीका ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है. अपने देखना भी आपका हक है, और उसे पूरे करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी ऑप्शन ढूंढना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है. उसमें मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ, बिकॉज अभी आप इस सेशन में आ ही गए हो. जो भी ड्रीम्स होंगे, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए 80% हम आपकी हेल्प करेंगे, बट 20% में से 10% एक होगा कि आपको ड्रीम्स को देखना पड़ेगा, और दूसरा 10% होगा कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ड्रीम देखा हुआ है तो अभी उसे पूरा भी करना है. मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन भी दे सकता हूँ यार. अगर आप में कमिटमेंट नहीं होगी, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है इस सेशन को अटेंड करके, बिकॉज एट द एंड आपको ये लगेगा इट्स नॉट अ पॉसिबल, ये मेरे से नहीं होगा, वैसा वैसा. अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स वगैरह, क्वेरीज वगैरह होंगे, तो आप इस सेशन को अगर अभी ये लीव करें, दैट्स अ बेटर, बिकॉज आपका टाइम बच सकता है. और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, बट अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो, बर्निंग डिजायर है, लर्निंग एटीट्यूड है कि ठीक है चलो नहीं है बट हम सीख सकते हैं, तो भी आप इस मीटिंग को अटेंड करें, ताकि बिकॉज अभी यहाँ पे आगे आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले ना, उस फैक्ट्स के ऊपर हो सकता है आपको थोड़ा सा बिलीव ना हो कि यार ये कैसा हो सकता है, सच में इतने पैसे आ सकते हैं, एवरीथिंग. इसलिए बोल रहा हूँ माइंडसेट को ओपन कीजिए, बिकॉज आपका माइंड हो या पैराशूट, दोनों चीजें तभी काम करेगी जब वो ओपन रहेगी. कोई फायदा नहीं है अगर उसे बंद करके ही रखोगे तो. वैसे ही आने वाले 40 टू 45 मिनट्स के लिए आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को ओपन करना है और सारी चीजों को अंदर लेना है. हाँ, बट उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज वगैरह होंगे, हम आगे डिस्कशन करेंगे. बट अभी फिलहाल के लिए 40 टू 45 मिनट्स के लिए ओपन योर माइंड एंड एवरीथिंग आपको अंदर डालने, सारी चीजें आपको समझना है अच्छी तरीके से. ड्रीम हो, जॉब करो, बिजनेस करो, मैंने बताया जॉब करते हैं हम पैसे के लिए, बिजनेस करते हैं हम पैसे के लिए, सपने देखते हैं, सपने पूरा करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं. ये पैसे आते कहाँ से, हाउ एवरीवन मेक्स मनी. दोस्तों देखिए, बचपन से हमें कहा जाता है कि पैसे कमाने तो दो चीज करो. पहली चीज, खूब पढ़ाई करो, जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पैसे आ गए. सेकंड, नहीं पढ़ाई करनी है, माँ बाप एक छोटी सी दुकान डाल के देते, बिजनेस कर. बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी होते हो आप. किसी खुद की दूसरे के लिए जॉब नहीं करते, बट आप खुद के लिए जॉब ही करते हो, आप बिजनेस नहीं करते हो. ये बहुत बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हमारी दुकान है, हम बिजनेस कर रहे हैं. दोस्त, ये बिजनेस नहीं होता, वो होती खुद के लिए जॉब. इट्स अ डिफरेंस बिजनेस ओनर में और सेल्फ एम्प्लॉय में. अगर बात करूं ई और एस सेक्टर की ना, पूरे वर्ल्ड में से 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो वो दो सेक्टर में काम कर रही है. पर 95% पॉपुलेशन भी अगर वहां पे काम कर रही है, तो ओनली 5% वेल्थ का जनरेशन लेफ्ट हैंड कैटेगरी में होता है. तो बाकी का 95% वेल्थ कहाँ पे जाता है पता है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के ऊपर. इन्वेस्टर, नाम से ही पता चलता है, पहले ही जेब में पैसे, उसी पे पैसे को लगाओ, पैसे को पैसे बनाओ, इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हो. बिजनेस ओनर क्या करते हैं पता है? बिजनेस ओनर कुछ लोगों को नेटवर्क क्रिएट करते हैं कि जिसके थ्रू उनका बिजनेस चलता है. वो कभी भी ज्यादा काम नहीं करेंगे, दे जस्ट मैनेज द पीपल. बट जो लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, वो उनके लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे ज्यादा पैसे उन्हें मिलते हैं. प्रॉफिट उनको होता है, और उस प्रॉफिट्स में से छोटा सा हिस्सा आपको दिया जाता है एज अ सैलरी. यही होता है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में. 5% पॉपुलेशन ऐसा है पूरे वर्ल्ड में से जो इन दो सेक्टर में काम कर रहे हैं अभी भी, और 95% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं. मैं भी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि जिसके जरिए आपको ये क्लियर होगा. ऐसे तो क्लियर नहीं होने वाला है कि 5% और 95% का किस तरीके से डिफरेंस पड़ता है. लेट सपोज अगर जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, अभी अगर आप एम्प्लॉय हो गए ई कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय हो गए तो एस कैटेगरी. इन दोनों का वर्किंग थोड़ा बहुत सेम ही होता है, मोस्ट ऑफ द डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पे. एक एग्जांपल लेते हैं. एक बर्गर की शॉप है, ठीक है. उस बर्गर की जो शॉप है, वो शॉप का जो ओनर है, वो एक दिन में 10 बर्गर को सेल कर रहा है, और एक दिन में वो लगभग 1000 रुपीज का प्रॉफिट को अर्न कर रहा है. पूरे महीने में वो 300 बर्गर को सेल करता है. अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, वो पूरे मंथ में, प्रॉफिट इन 1 मंथ, वो लगभग 30,000 का प्रॉफिट जनरेट करेगा. बिकॉज दिन के 10 बर्गर को सेल कर रहा है, महीने के 300 करेगा, एक दिन का प्रॉफिट निकल रहा है 1000, महीने के दिन होते हैं 30, प्रॉफिट निकलता है 30,000 रुपीज पर मंथ. ये स्ट्रक्चर चलता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में. पॉपुलेशन देखोगे तो 95% वर्क कर रहे हैं, बट वेल्थ देखोगे ओनली 5% जनरेट हो रही है. यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिखाया गया है, बर्गर. हमने बिकॉज बर्गर देखा हुआ है.
यहाँ पर मैं आपको ऐसा अभी नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देने वाला हूँ जहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट सिर्फ ध्यान में रखो बर्गर, और दूसरी चीज ध्यान में रखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30,000 पर मंथ। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो बिजनेस ओनर होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। उनके पास ना जॉब होती है, उनके पास ना खुद का बिजनेस होता है, ना कुछ होता है। वो क्या करते हैं, अपने खुद के लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। लेट सपोज हमने बर्गर का एग्जाम्पल लिया था, अभी भी हम बर्गर का ही एग्जाम्पल लेंगे। अगर मान के चलो एक बंदा है जिसकी बर्गर की शॉप है, उसने 50 लोगों की टीम को प्रिपेयर किया। 50 लोगों की टीम को उन्होंने सिखा दिया कि इस तरीके से बर्गर बनाना है, ऑल द थिंग्स। और अगर वो एक बंदा अगर एक दिन के 10 बर्गर को सेल कर रहा है, तो वो जो 50 लोगों की टीम होगी, वो एक दिन में लगभग 500 बर्गर्स को सेल करेंगे। एमआरपी पकड़ लेते 50 रुपीज का एक बर्गर होगा एज इट इज। और वो जो टॉप का बंदा होगा कि जिसने ये सिस्टम को क्रिएट किया है, जिसने इस टीम को क्रिएट किया है, उसने डिसाइड किया कि मैं पूरे टर्नओवर में से सिर्फ 20% का प्रॉफिट रखूंगा, यानी कि एक बर्गर बिका तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट। पूरे दिन में उसके बर्गर बिक रहे 500, तो उसका जो प्रॉफिट होने वाला है पूरे दिन का, वो लगभग हो रहा है 5,000 रुपीज। महीने के कितने बर्गर बिकेंगे, 15,000 रुपीज। उसकी पूरी टीम मिलकर के बर्गर सेल करेगी। वो खुद नहीं करने वाला है, वो खुद कुछ काम नहीं करने वाला है। उसने जो उसको जो काम करना था उसने वो कर दिया, उसने उस सिस्टम को बिल्डअप कर दिया, उसका काम हो गया। अभी उसकी टीम आगे काम करेगी। 15,000 बर्गर को सेल कर रहे, उसका जो एक महीने का प्रॉफिट होगा ना, वो लगभग 1.5 लाख तक चला जाएगा। पिछले स्लाइड में हमने देखा था प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, बर्गर ही है। ये बंदा भी बर्गर बेचने वाला है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो हमने स्लाइड देखी थी उसमें भी बर्गर ही बेच रहा है। बट यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे ना, तो मोर देन ट्रिपल, 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 3 गुना 4 गुना से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और इसी के कारण मैकडोनल्ड्स आज नंबर 1 फूड नेटवर्क। मैकडोनल्ड्स पूरे दिन भर में लगभग $75 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर लेते, इसी कारण की वजह से। बिकॉज उनके जो हम बोल सकते हेड थे, उनके जो फाउंडर थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि मुझे सिर्फ बर्गर को ही नहीं सेल करना है, मुझे बर्गर के साथ ही साथ मुझे अपने फ्रेंचाइजी को भी सेल करना है, मुझे अपना सिस्टम को सेल करना है। यानी कि मैं भी पैसे कमाऊं, सामने वाला भी पैसे कमाए, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे हो। बिजनेस में ना, बिजनेस ओनर वाले एक ही कंसेप्ट का बहुत तगड़ी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो होता है नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। बहुत वर्ल्ड के टॉप टॉप लीडर्स जो भी होंगे ना, वो आपको इस कंसेप्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए, इस कंसेप्ट को हम बोल सकते हैं प्रमोट करते हुए दिखेंगे। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क होने वाली है। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टारबक्स हो गए। अभी स्टारबक्स क्या करते हैं, उनका खुद को कहीं भी आपको कॉफी शॉप नहीं दिखेगा, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी दी हुई है। यानी कि अगर मैं फ्रेंचाइजी लेने जाता हूँ तो मुझे वो शॉप खोलना पड़ेगा, मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो लोग मुझे सिर्फ ब्रांड देंगे, दैट्स इट। बट पैसे सबसे ज्यादा वो कमाएंगे अमेजोन। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ले लो, अमेजोन की कहीं पर भी एक भी दुकान नहीं है। बट आप घर में बैठे हुए पूरे इंडिया में से, पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने सारे रिटेलर्स को एक साथ में कनेक्ट किया हुआ, एक सिस्टम क्रिएट की हुई है। ओला उबर, उनके फाउंडर की कोई भी टैक्सी नहीं है, कोई भी ऑटो वगैरह उन्होंने ओन नहीं की हुई है। लोगों की ऑटो है, लोगों की टैक्सी है, बट उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया और उस सिस्टम से उनका बिजनेस चल रहा है। केएफसी सेम एज इट इज मैकडोनल्ड, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आप बोलोगे कि एम्प्लॉय में आपने दिखाया डिफरेंस, आपने बिजनेस ओनर में डिफरेंस दिखाया, इतना 4 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट वहां पे अगर जनरेट हो रहा है, तो भी लोग जो है वो बिजनेस ओनर क्यों नहीं बनते। सबसे पहली चीज, पैसे नहीं होते। पहली चीज क्या होती है, जेब में पैसे नहीं होते, बिकॉज बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होगी। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अरेंज हो जाएंगे। नॉलेज, नॉलेज कहाँ से लेगो, क्योंकि बचपन से तो बिजनेस के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता है। टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये एक ट्रूथ है। जो लोग एमबीए वगैरह पढ़ाते हैं, जो टीचर्स लोग भी एमबीए वगैरह हमें पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, उन्होंने भी लाइफ में कभी भी बिजनेस नहीं किया होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने कभी भी लाइफ में बिजनेस नहीं किया होता है, बट वो स्टूडेंट को बिजनेस के बारे में सिखाते हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे, कोई बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीजें सीखोगे, एक्सपीरियंस लगेगा। गाइड करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, एक मेंटोर भी तो होना चाहिए कि जो आपको प्रॉपर गाइड करे, प्रॉपर आपकी हेल्प करे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। फेल्योर का डर होता है, फेल्योर का डर ही आदमी को ना पीछे खींचता है कि फेल हो गए तो क्या होगा, पैसे डूब गए तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, सेल्फ डाउट होते हैं, फेल्योर होता है, इट टेक्स टाइम। आपने एक कोट सुनी होगी, अ गुड थिंग्स टेक्स टाइम। जो भी बड़ी चीज आपको डेवलप करनी है, जो बढ़िया चीज डेवलप करनी है, टाइम लगेगा। आज बिजनेस खड़ा किया, कल प्रॉफिट आएगा, रॉन्ग माइंडसेट और लॉटरी माइंडसेट, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेट होने के लिए टाइम लगता है। फिर भी लोग बिजनेस नहीं करते, बिकॉज बिजनेस में एक और पॉइंट होता है कि बिजनेस रिसेशन फ्री कभी नहीं होते। कोविड आए, कुछ भी
आ सकता है। जैसे आपने देखा अभी 2020 में कोविड आया, बहुत सारे लोगों के जो सेट बिजनेस थे बड़े बड़े, वो भी फ्लॉप हो गए बिकॉज रिसेशन प्रूफ नहीं थे। अगर हम बात करें तो तीन ही इंडस्ट्री ऐसी कि जहां पर आपको एक रिसेशन फ्री बिजनेस प्रोवाइड होता है। एक होता है एजुकेशन, दूसरा होता है मेडिकल, तीसरा होता है हेल्थ एंड वेलनेस। एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों एजुकेशन 2020 से पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन है। कोविड है बाहर, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर, टीचर अपने घर या स्कूल में, बट आपकी पढ़ाई हो रही है। यानी उन लोगों को पैसे तो देने ही देने, उन लोगों का बिजनेस चल रहा है। मेडिकल की बात करो, हेल्थ कैजुअलिटीज हो रही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने कोविड टाइम में दबा करके पैसे अर्न करे। कोविड नहीं था तो भी पॉजिटिव दिखाया, कुछ स्कैम हुए, ज्यादा बिल्स लगा रहे थे, मतलब पैसे यहाँ पे रोटेट हो रहे थे। और तीसरी इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जो पहले से बूमिंग में थी बट इतनी नहीं थी। लोग कोविड की वजह से बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि जिनको अभी पता चल रहा है कि भाई कोविड है, कुछ भी पैंडेमिक आ सकता है, कोई भी वायरस आ सकता है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। हेल्थ की केयर करते हैं बिकॉज पैसे कमा लोगे, बट पैसे कमाने के बाद उसे एंजॉय करने के लिए अच्छी सेहत भी तो चाहिए। तो हेल्थ एंड वेलनेस, ये तीन ही इंडस्ट्री में अगर आपका बिजनेस होगा, 100% आपका बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। और हमारा बिजनेस भी आता है तीसरे वाले कैटेगरी में, जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि क्या हमारा एक्चुअल में बिजनेस है, किस तरीके से हमारा वर्किंग मॉडल है। उसे कहा जाता है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। जो कि वर्ल्ड के टॉप लीडर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पहले ही इस बिजनेस को कहा हुआ है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी का व्यापार। इसके लिए हम एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों इस कंसेप्ट को जब मैंने सबसे पहला देखा था ना, जैसे बहुत सारे लोग आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वैसे भी मैंने इस कंसेप्ट को सबसे पहली बार देखा था, तब सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी थी कि नो इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने उस लेटर को रेड में फॉन्ट किया हुआ है, नो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट प्लेग्राउंड है, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अगर 18 की साल में अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अननोन पीपल के सामने अपने बिजनेस को रख सकता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो आप भी कर सकते हो बिकॉज इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ से अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो। पैसिव इनकम आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो, यानी कि कुछ साल की मेहनत सिस्टम खड़ी करने के लिए, एक बार सिस्टम खड़ा हो गया, फिर काम करो तो भी पैसे, नहीं करो तो भी पैसे। ये पावर होती है पैसिव इनकम की। रिसेशन फ्री बिजनेस है। कोविड है, कोविड के टाइम में तो जम के इस बिजनेस में लोगों ने पैसे अर्न करे हुए है। बाहर लोगों की जॉब जा रही थी, बाहर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, बट यहाँ पे लोग फाइनेंशियली एंजॉय कर रहे थे। क्यों? हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से बिजनेस आता है जो कि रिसेशन फ्री है। सेलिंग का बिजनेस नहीं है, कहीं पे जाकर के डोर टू डोर भाई मेरे से प्रोडक्ट ले लो, मेरे से प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरे से ये लो, नहीं। हमें सेलिंग नहीं करनी। वी आर नॉट अ सेल्स पर्सन, वी आर अ बिजनेस ओनर, वी आर एन एंटरप्रेन्योर। सिंपल बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बट इजी नहीं है। जॉब करोगे, काम करोगे तो ही आपको पैसा आएगा। जॉब मिलने से पैसे नहीं आते, उस जॉब में काम करोगे ना तो सामने वाला बंदा पैसे देगा, नहीं तो जॉब भी निकाल ली जाएगी। बिजनेस स्टार्ट करने से पैसे नहीं आएंगे, उस बिजनेस में काम करना पड़ेगा, उस बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। ये कंसेप्ट भी सेम वैसा ही वर्क करता है। ये कंसेप्ट में एंटर होने से, ज्वाइन करने से आपको पैसे नहीं आएंगे, आपको काम करना पड़ेगा तो आपको पैसे आएंगे। बट जैसे ही मैंने इस कंसेप्ट को सुना और मेरे पास टाइम था, बिकॉज मैं तब 17 ईयर्स का था जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो मेरे पास 1 साल था। मैंने सोचा यार अभी देख ही लिया है और अच्छी तरीके से स्टार्ट करना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जब मैं स्टार्ट करूंगा, टाइम भी है मेरे पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च करते। रिसर्च किया तब कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए जो कि थे कि ये चेन सिस्टम वाला काम होता है, यहाँ पे दो के नीचे दो लोगों को जोड़ने वाला काम होता है, मेंबर बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, करने के बाद भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई सर्विस नहीं होगी, कंपनी का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ चीजें नहीं होगी, जस्ट बिजनेस करो, लोगों को जोड़ो, मेंबर बनाने वाला काम। देखा, समझा और थोड़ा सा माइंड में सेल्फ डाउट आ गया, थोड़ा सा डाउट, मेरी सारी चीजें क्लियर आने लगी। फिर मैंने फिर से ऊपर उसके ऊपर रिसर्च किया, बिकॉज हर चीज के ना कोई तो प्रोज और कॉन्स होते हैं। कुछ भी चीजों को करने जाओ आपको एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। बट मैंने रिसर्च किया कि मैंने बोला ये निगेटिव चीज है, ताकि पहले तो कुछ तो हुआ होगा। फिर पता चला बहुत सारी कंपनियां पहले ऐसे आई थी कि जिन्होंने फ्रॉड किए, स्कैम किए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में एक एसोसिएशन को क्रिएट किया जो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाए हुए हैं। मैंने उस पूरे गाइडलाइंस को पढ़ा और उस गाइडलाइन से मुझे पता चला कि भाई ये काम ऐसा नहीं है। मैं समझ गया ये काम ऐसा नहीं है। फिर ये काम कैसा है? इट्स बेस्ड ऑन सिंपली रिकमेंडेशन, सिंपल रिकमेंडेशन। मूवी देखने के लिए जाते, मूवी अच्छी लगी, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली हो, नेबर्स हो, हर बंदे को हम उस मूवी के बारे में बताते, भाई तू भी देख, क्या बढ़िया मूवी है, फैमिली के साथ जाना, फैमिली वाली मूवी, कॉमेडी वाली मूवी है, सब लोग मिलके साथ जाना, बहुत मजे आएंगे। हम क्या करते हैं, रेफर करते, रिकमेंड करते, बचपन से ये आदत होती है हमारे
हमारे में कि हम चीजों, हमें जो भी चीज अच्छी लगी हम सामने वाले को रिकमेंड कर देते, भले उससे कोई प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, बट हम रिकमेंड कर देंगे। यहाँ पर भी आपको सिंपल काम करना है, बट यहाँ पर काम करने के लिए सोशल मीडिया का यूज होता है। जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं कि जिसके अंदर आपका बिजनेस होता है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, कि लोगों को कुछ तो ऑफर किया जा रहा है तभी आपको पैसे आ रहे हैं। ये चीज मैंने समझी। उसके बाद मैंने देखा यार चेन सिस्टम, फिर भी माइंड में ये आ रहा था कि यार चेन सिस्टम क्या होता है। दोस्तों चेन सिस्टम एक ऐसा वर्ड है कि लोगों ने उसे बहुत ज्यादा हाइप बनाए हुए। इट्स अ सिंपल बिल्ड योर ओन नेटवर्क और ओन सिस्टम, दैट्स इट। अभी मैकडोनल्ड्स क्या है, मैकडोनल्ड्स को चेन सिस्टम बोल दो, मैकडोनल्ड्स को उसका खुद का नेटवर्क बोल दो, मैकडोनल्ड्स को उसका खुद का सिस्टम बोल दो, उसे कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। उसका प्रॉफिट तगड़ा हो रहा है बिकॉज उन्होंने खुद का नेटवर्क क्रिएट करके रखा हुआ है। पूरे वर्ल्ड भर में उसके 38,000 से ज्यादा के फ्रेंचाइजीज है जो हर दिन वर्क करते हैं, इसीलिए $78 मिलियन का टर्नओवर वो बंदा एक दिन में जनरेट करता है। क्या किया उसने, लोगों को कनेक्ट किया सिस्टम के साथ। फेसबुक क्या किया, फेसबुक ने लोगों को कनेक्ट करके रखा है ना। फेसबुक ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में से लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा। अभी रिसेंटली फेसबुक डाउन हो गया था, राइट। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ से आपको पावर समझ में आएगी कि ये सिस्टम होने से, अपना खुद का नेटवर्क होने से क्या होता है। फेसबुक अभी सर्वर डाउन थे, यानी कि लोग एक दूसरे के जो कनेक्शन था वो पूरी तरीके से टूट गया कुछ घंटों के लिए। इसी कुछ घंटों में उसकी जो प्रॉफिट, जो नेटवर्थ थी वो बहुत घटी, बहुत कम हुई, उसके शेयर्स डाउन हुए, यानी कि उनको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा एक ही चीज की वजह से, क्योंकि उनका जो नेटवर्क था वो थोड़ा सा टूट गया था, सर्वर डाउन हुआ था, फिर से नेटवर्क बिल्ड हुआ, फिर से प्रॉफिट हुआ। गूगल पे, पेटीएम, KFC, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जो भी आप देखोगे जो सक्सेसफुल बिजनेस है उन्होंने अपने सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है। ओला, उबर, ओयो, उन्होंने अपने सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है और उसी की वजह से, उसी की दम पे वो आज पैसे कमा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमें मैकडोनल्ड्स में जॉब लगती है तो हम खुश होते हैं, बट भाई आप मैकडोनल्ड्स का पार्ट बने हो, आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ओन नहीं कर सकते। फेसबुक में जॉब करने से आप उनके नेटवर्क का पार्ट बनते हो, बट आप अपना खुद का नेटवर्क नहीं बना सकोगे। वो सारी चीजें होती है, वो मैंने समझा, सीखा। फिर कुछ और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यार बहुत सारे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स है उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है, उनके भी बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए। उसमें मैंने देखा डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने बोला कि यार ये जो इंडस्ट्री है ना, इट्स द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, एंड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल है पूरे दुनिया में से, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल है। बिल क्लिंटन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बताया कि ये जो इंडस्ट्री है ना वो हर बंदे को पैसा देगी, हर बंदे को चांस देती है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कॉलेज की डिग्री हो नहीं हो, डजेंट मैटर, अगर आप में करने की ताकत होगी, करने की इच्छा होगी तो आप कर सकते हो, सिंपल। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, मैं तो इस इंडस्ट्री को तभी रिकमेंड करूंगा जब आप लोगों को अपने लाइफ से कुछ यूनिक बेनिफिट्स निकालने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ कांत, ये लोग कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब 2005 में हमारे प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने स्टेटमेंट को पास किया, तो उन्होंने बताया था कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो 21st सेंचुरी का बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल होने वाला है, और जो कि अभी साबित हो रहा है। हर यंग मैन को, हर वुमेन को ग्लोबली उसे कनेक्ट करना चाहिए। नाइदर यू विल नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अगर आपका यूथ एज है ना, अगर आपको बहुत बड़ा करना है, सोसाइटी से डिफरेंट करना है, करके दिखाना है, इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अमिताभ कांत जो सीईओ है नीति आयोग के, IAS ऑफिसर है, वो नीति आयोग एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारे इंडियन की जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर नजर रखा जाता है। उन्होंने 2020 में जो पैंडेमिक था ना उसके बाद एक स्टेटमेंट को पास किया दिसंबर में। उन्होंने बताया ये जो प्रोफेशनल्स है, यहाँ के जो वर्कर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस ओनर्स है, दे आर डूइंग अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, वेरी रिस्पेक्टेबल वाला, बहुत रिस्पेक्ट वाला काम कर रहे हैं, एंड दे आर द एक्चुअल इकोनॉमी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ होगी ना तो उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हम सभी लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं, यूट्यूब की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, खुद का बिजनेस है, पैसिव मोड पे है, करोड़ों अर्न करते हैं। अब हम थोड़ा सा उनसे सुनते हैं कि ये इस बिजनेस के बारे में पर्टिकुलरली उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अगर मेरी भी कोई संतान होगी तो मैं उन्हें भी कुछ समय के लिए इस इंडस्ट्री में जरूर डालूंगा, पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। जो कि मैं हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे थे, सुमन जी थे, उन्होंने बताया मैं बहुत शाय लड़की थी, बट मैंने इस अपॉर्चुनिटी की वजह से अपने आप को बहुत अपग्रेड किया। मैं बता रहा हूँ कि 18 की साल में मैं इंटरनेशनली बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, 18 की साल में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये चीजें इसी इंडस्ट्री के पॉसिबल हुई थी। अब हम उठते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के लास्ट टॉपिक में कि एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी क्या है। समझ तो आ गई चीजें कैसी करनी है, बिजनेस ओनर बनना है, वो सारी चीजें, बट करेंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों फ्रीडम ग्रुप का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से टाइप किया हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इस ब्रांड के साथ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक टॉप हेल्थ एंड वेलनेस का ब्रांड है पूरे वर्ल्ड वाइड का। जैसे अगर हम शूज खरीदने के लिए जाते हैं, हमें आता है ना माइंड में नाइकी, रिबॉक, पुमा, वैसे अगर हेल्थ एंड वेलनेस की बात आती है तो आता है फॉरएवर, बिकॉज इट्स अ ब्रांड। 1978 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, 43 इयर्स ओल्ड एंड स्टेबल कंपनी है। 175 प्लस कंट्रीज में कंपनी एक्टिवली अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है और आपको भी मौका देती है कि आप भी 175 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। 2800 प्लस कंपनी के ओन ऑफिस है, वर्ल्ड वाइड कंपनी के ऑफिस है। इंडिया की बात करें तो बॉम्बे में हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया का, उसके अलावा 19 रीजनल ऑफिस है जो कि पूरे इंडिया भर है। 380 करोड़ यूएसडी का टर्नओवर कंपनी जनरेट करती है, लगभग 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर कंपनी जनरेट कर लेती है। फॉर्च्यून 400 में कंपनी ने अपने आप को 4 बार लिस्टेड करवाया है। 80,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। साल था मेरा 17 साल जब मैं ये सारी चीजें सुन रहा था, बहुत सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकल रही थी, बट एक चीज दिमाग में इतनी बढ़िया हिट करी ना, वो थी ये कंपनी पूरी तरीके से कैश रिच और डेट फ्री कंपनी है। मतलब क्या, 1978 से लेकर के 2021 तक ना किसी बैंक का लोन, ना कोई शेयर होल्डर्स, ना कोई इन्वेस्टर, यानी कि किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी का पैसा नहीं, जो भी है खुद का है। और इतना होने कारण भी 175 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। और जिन भी लोगों को थोड़ा सा भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा या प्रोफेशनल नॉलेज होगी ना, उन लोगों को ये बात जरूर हिट करेगी। अगर 17 की साल में ये बात मुझे हिट कर सकती है ना, ऑब्वियसली आपको तो हिट करेंगी दोस्तों। और ये जो कंपनी, ये जो अपॉर्चुनिटी ना, इसे हल्के में मत लेना, बिकॉज इट्स अ कंबाइन ऑफ फास्टेस्ट ट्रू ग्रोइंग इंडस्ट्री। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की नहीं बात करता, बिकॉज अभी हम स्टार्ट करेंगे तो इंडिया से ही बढ़ेंगे, राइट। इंडिया की बात करता हूँ। गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, केपीएमजी और फिक्की, गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। केपीएमजी और फिक्की गवर्नमेंट की बॉडीज है, उन्होंने एक रिपोर्ट किया था, उन्होंने एक सर्वे के द्वारा ये बताया है कि ये जो इंडस्ट्री है ना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, ये 2025 तक आते आते, यानी कि अभी नेक्स्ट 5 साल में ये इंडस्ट्री लगभग 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। फिर से रिपीट करता हूं, उनका रिपोर्ट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,500 करोड़ का बिजनेस सिर्फ इंडिया में करेगी। सिर्फ अभी 65,000 करोड़ में से मान के चले 2025 तक दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2 से 3 करोड़ तक भी अर्न किया, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए बुरा रहेगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हाँ, एफर्ट्स करने, काम करनी, मेहनत करनी, उससे कोई छुटकारा नहीं है, बट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर 2025 तक 65,000 करोड़ से अगर मान के चलो आपने 3 करोड़ भी कमा लिए, आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज हमारे पास एक और इंडस्ट्री ऐसी आती है हेल्थ एंड वेलनेस से। 2015 में इस हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का हमारे इंडिया में टर्नओवर था लगभग 80,000 करोड़ का। बस मैंने आपको पहले भी बताया, हेल्थ एंड वेलनेस पहले भी बूम में थी, बट कोविड के बाद में बहुत ऊपर उठी हुई, क्योंकि वो लोग जो है वो हेल्थ कॉन्शियस बने हुए हैं। 2020 में ये इंडस्ट्री लगभग 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 1.50 लाख करोड़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस हो चुकी है। आप यहाँ पर आते हो ना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, हेल्थ एंड वेलनेस से भी आते हो, यानी कि आप कैलकुलेट करो, मैं नहीं बताऊंगा 1.50 लाख प्लस 65,500 करोड़ कितना होता है। उसमें से मैं बोल रहा हूँ 2025 तक मिनिमम 2 या 3 करोड़ भी अर्न करोगे ना, तो भी आपके लिए बेटर है। बुरा किसी के लिए नहीं होगा कि जॉब करोगे ना, जॉब में लाइफ टाइम आप भी 3 to 4 लाख करोड़ तक अर्न करते हो, लाइफ टाइम में अर्न करते हो, यानी कि जब तक काम कर रहे हो ना तब तक अर्न करोगे।
यहाँ पे मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी मत सुनो, गवर्नमेंट की बॉडीज है, गूगल सबके पास है, फिक्की और केपीएमजी, फिक्की और केपीएमजी डालना, सर्च करना, रिसर्च करो, बिकॉज यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज है ना। फॉरएवर का बिजनेस विदाउट एनी थर्ड पार्टी के पैसे के बिना किस तरीके से बढ़ रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट में क्वालिटी है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर के, एलोवेरा के ड्रिंक्स है, हनी बीज के, हनी के प्रोडक्ट्स है, टारगेटेड स्किन केयर के, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लगभग 200 प्लस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी बेस्ट होता है वो एलोवेरा और हनी बीज से होता है। आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ वीडियोस जरूर शेयर कर दी जाएंगी कि जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। एलोवेरा का जो लैंड है ना, 7,500 एकड़ का लैंड है कंपनी के पास, मैक्सिको डोमिनिक रिपब्लिक में, जो कंपनी ने खुद से ओन करके रखा हुआ है। खुद का लैंड है, खुद एलोवेरा उगाएंगे, खुद उसका प्लांटेशन करेंगे, खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और खुद डिलीवरी भी करेंगे। जस्ट वो जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला पार्ट आता है वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, वहां पे पैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने में पैसे। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चर आता है, यानी कि कोका कोला मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को और कोका कोला को पूरे वर्ल्ड भर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के नेटवर्क क्रिएट होते हैं, रिटेलर आता है, होलसेलर आता है, रीजनल्स आते हैं, वो सारे लोगों का एक सिस्टम आता है। उनके थ्रू प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, सलमान खान आएगा, है ना। फिर उसके बाद उनके ऊपर भी पैसे जाएंगे, फिर प्रोडक्ट जाता है कस्टमर पे। 2 रुपए की बॉटल मैन्युफैक्चर होती है, हमारे पास आते आते 90 रुपए तक की हो जाती है। तो बीच में के जो पैसे वो कहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। भाई उन लोगों का भी गलत नहीं है, उन लोगों को भी पैसे लगते हैं। तो 2 रुपए की बॉटल 90 रुपीज में तो आपको लेनी ही पड़ेगी। बट हमारी बात करें, क्यों यूनिक है, क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडस्ट्री इतना बड़ा बिजनेस करेगी 2025 तक 65,000 करोड़ का, बिकॉज मैन्युफैक्चर होता है उनके पास, यानी कि हमारे पास मैन्युफैक्चर है फॉरएवर, बीच में कोई बंदा ही नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर है। यानी कि अगर एक कस्टमर है फॉरएवर, मैं और कस्टमर, यानी कि 100 रुपीज का भी प्रोडक्ट अगर मैं कस्टमर को दे देता हूँ, 20 रुपीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 80 रुपीज डायरेक्टली मेरे पास आ जाते हैं। ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो कंपनी का हेडेक है। 80% काम कंपनी ने खुद करके रखा हुआ है, आपको जस्ट 20% के ऊपर वर्क करना है। अंडरस्टैंड करते किस तरीके से इस बिजनेस को मॉडल चलता है। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना होगा, सीसी, बिकॉज आगे अभी सीसी की बहुत बात होगी। सीसी क्या है, एक केस क्रेडिट है। कंपनी ने हर प्रोडक्ट के ऊपर खुद के कुछ पॉइंट्स रखे हुए कि जहां से वो आपके एक्टिविटीज को, आपके बिजनेस को ट्रैक करते हैं, आपको कितना इनकम देना है, कितने बोनसेस देने हैं, अन इंसेंटिव कैसे देने हैं, वो सारी चीजों के लिए सीसी होता है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने 2-3 महीने पहले मैंने यूएसए में बिजनेस किया, तो वहां पर इंडियन रुपीज नहीं था, वहां पे था यूएसडी डॉलर। बट मेरा बिजनेस का एक्चुअल में कैलकुलेशन हुआ सीसी में, बिकॉज कंपनी की खुद की करेंसी 170 प्लस कंट्रीज, 5 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस कर रही है। हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है। कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को भी हेडेक ना हो कि भाई यहाँ से इतना आएगा फिर वहां का कन्वर्जन रेट है, कुछ नहीं, सीसी में बिजनेस होता है। इंडिया की बात करूं तो 1 सीसी का प्राइस है 15,000 रुपीज। बट ये आते कहां से, बढ़ता कहां से बिजनेस, जैसे आप स्टार्ट करोगे आपकी लेवल होगी प्रेफर कस्टमर, यानी कि आप एक कंपनी में कस्टमर बनते हो, प्रेफर कस्टमर बनते हो। 5% का डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। 25% का प्रेफर कस्टमर प्रॉफिट वहां से स्टार्ट होता है। अगर आपने किसी को अपने बिजनेस में अपने टीम का पार्ट बना लिया, आपको 25% प्रॉफिट आएगा। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में आप जैसे 2 सीज का बिजनेस करते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। बनने के बाद लाइफ टाइम के लिए आपको 30% का प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट आएगा। 25% का चलेगा, और यही वो लेवल है कि जहां पे आपको खुद की मेहनत से पहुंचना है, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। हम आपको रास्ते दिखाएंगे, बट उस रास्ते में आपको चलना है, जस्ट 2 सीसी तक। उसके बाद सच में इस बिजनेस की पावर यहाँ से स्टार्ट होती है। 175 प्लस कंट्रीज में कहीं पर भी बिजनेस करो, और जहां पर भी बिजनेस करोगे पूरी टीम का बिजनेस का बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि पूरी टीम मिलकर के, जैसे आप 25 सीसी का करके आप सुपरवाइजर बनोगे, 75 सीसी करोगे आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, यानी मैनेजर लेवल। 120 सीसी का बिजनेस अगर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, या तो 150 सीसी का किसी भी 4 मंथ में अगर आप जनरेट कर देते हो, आप बन जाते हो मैनेजर। हर बंदे की एक ड्रीम लेवल होती है कि आप किस तरीके से इस मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करें। मैं खुद इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों होता है पता है ये ड्रीम, क्यों लगता है हर बंदे को इस मैनेजर को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू गो इन डिटेल। इस सेशन में इस पूरे प्लान को इन डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, और मैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहता हूँ। आपके लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जहां पर आपको बहुत इन डिटेल पूरा अच्छी तरीके से इसके बारे में, सिर्फ इसके ही बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि बस यहाँ से ही पैसे आएंगे। कैसे आएंगे पता है पैसे,
जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तब आपकी इनकम लगभग 20 to 30,000 तक होती है। सुपरवाइजर बनने के बाद आपकी इनकम 45 to 50,000 तक होती है। असिस्टेंट मैनेजर तक आपकी इनकम 75 तक पहुंच जाती है, और मैनेजर यानी कि ड्रीम लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है। 1 लाख प्लस आपकी उस मंथ में इनकम होती है जिस मंथ में आप मैनेजर बनते हो, और उसके बाद तो इनकम बढ़ती ही जाती है। और हम लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम से आपकी हेल्प करेंगे कि जहां पर आप मैक्सिमम 12 मंथ्स में आप अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वादा किया था कि एवरीथिंग विल स्टार्ट विद ड्रीम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, और एक था ट्रैवल। 4 में से फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मैंने आपको दे दिया है, उसके थोड़े से पार्ट्स में बताऊंगा, बट मेन रास्ता मैंने आपको दे दिया है। एक जॉब बताओ, एक ऐसा प्रोफेशन बताओ कि जिसमें मेहनत करके 2-3 घंटे काम करके 7 से 8 महीने में आपकी इनकम 1 लाख हो सकती है। एक प्रोफेशन बताओ। फाइनेंशियल फ्रीडम को थोड़ा सा हटा देते, अभी आते ड्रीम कार के ऊपर। बिकॉज मैंने तो आपको बताया हुआ है, अगर ये 4 ड्रीम में से आपके होंगे तो 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते कि ये ड्रीम्स आपको पूरे करने, 20% आपको एक्शन लेना है। वो बढ़ते ड्रीम कार, इसमें हम हाउस भी कवर करेंगे। कंपनी का एक इंसेंटिव होता है फॉरएवर टू ड्राइव। इस इंसेंटिव से आप अपनी घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, और एनीथिंग दैट यू विश फॉर, आपकी जो भी इच्छा हो आप कर सकते हो। सेविंग करना है सेविंग करो, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है आप जा सकते हो। जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट ईयर मेरे पायलट ट्रेनिंग के लिए मैं कनाडा जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इस कंपनी से इंसेंटिव ही इतने। लेवल 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो, कंपनी आपको 26,000 रुपीज देती एक्स्ट्रा। लेवल 2 करो 39,000 एक्स्ट्रा, लेवल 3 करो 52,000 रुपीज एक्स्ट्रा। आप बोलोगे यार 26,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो बात समझ में आ रही है, बट उस 26,000 में कार कैसे खरीदे? 26,000 में तो कार नहीं मिलती, आई एग्री। कंपनी भी ये बात जानती है, और कंपनी बोलती है कि आपको 26,000 आने वाले 36 मंथ तक यानी कि 3 साल तक मिलने वाले। यानी कि लेट सपोज मेरा जो इनकम है वो है 1 लाख रुपीज। लेवल 1 मैंने क्वालिफाई कर दिया, तो वहां से लेकर के आने वाले 3 साल तक मेरी इनकम हो गई 1,26,000। यानी कि जहां पर हम बोले कि हम लाखों खर्च करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, इंडियन मार्केट की बात करूं दोस्तों, तो 26,000 की स्टार्टिंग की सैलरी भी नहीं होती। कंपनी आपको एक्स्ट्रा दे रही है आपकी इनकम के ऊपर। 36 मंथ का होता है। 36 मंथ के अंदर अगर आपने लेवल 2 या लेवल 3 को भी अगर क्वालिफाई कर लिया होगा, तो जैसा ही आपका 36 मंथ का फिनिश होता है, नेक्स्ट मंथ से आपका लेवल 3 का चालू हो जाएगा। यानी कि आप में यहाँ पे कहीं भी पैसे जाने की डर नहीं है। कुछ भी करो, कार खरीदो, हाउस खरीदो, और एनीथिंग दैट यू विश फॉर ना। ड्रीम हाउस और ड्रीम कार का तो मैंने आई थिंक मैंने हिसाब से मैंने तो क्लियर करके दिया हुआ है। फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी मैं बताऊंगा, उसको मैंने अभी तक मिटाया हुआ नहीं है। ट्रैवल, ट्रैवल विद फॉरएवर इन फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे साल भर में फॉरएवर आपको मौके देती है 3 ट्रैवल्स के। 2 होते हैं ग्लोबल डेस्टिनेशन, एक होता है डोमेस्टिक सरप्राइज लोकेशन। जब तक आप वहां पर नहीं जाते ना, तब तक आपको नहीं पता चलता कि हमें कहाँ लेके जा रहे, नहीं पता होता है। 5 स्टार की लग्जरी लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर सकते हो। अभी रिसेंटली पिछले ही मंथ में सितंबर में कंपनी का मैनेजर रिट्रीट हुआ था, यानी कि 2020 में जितने भी लोगों ने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था, कंपनी ने उनको 5 डेज के लिए ट्रीट दिया था लीला पैलेस जयपुर में। लीला पैलेस जयपुर आके अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां का जो नाइट का स्टे है वो 1 डे के लिए हार्डली 30,000 तक है समथिंग, सिर्फ स्टे का 30,000। मतलब 5 डेज का इट्स हार्डली कम टू 1.50 लाख रुपीज, सिर्फ रहने की कॉस्ट कंपनी ने खुद पे किया था। उस टाइप की ट्रीटमेंट कंपनी आपको प्रोवाइड करती जस्ट मैनेजर करने के बाद ही। यानी कि अभी रिसेंटली की बात है, आपको जिसने भी इनवाइट किया उनके उनसे आप उसके वीडियोस ले सकते हो कि किस तरीके से ट्रीटमेंट थी, कौन सा होटल था, सच में लीला पैलेस था या कोई 3 स्टार या 2 स्टार होटल था, आप देख सकते हो। और ग्लोबल रैली के आपको वीडियो शेयर कर दिए जाएंगे जहां पे आपको ग्लोबल लोकेशन में 5 स्टार 7 स्टार होटल में 5 डेज का स्टे दिया जाता है प्रॉपरली फ्री। प्लस ग्लोबल रैली में एक इंसेंटिव मिलता है, पता है आपको, पॉकेट मनी भी दी जाती है। अभी 10 या 15 मई के अंदर हमारी ग्लोबल रैली अबू धाबी में होने वाली है, यानी कि अबू धाबी की जो भी करेंसी होगी ना उसमें आपको पॉकेट मनी दी जाएगी कि 5 दिन आप वहां पे हो, जो भी शॉपिंग करनी हमारे पैसे से करो, खुद के पैसे खर्च ना करो। पॉकेट मनी दी जाती है, फिर उस पॉकेट मनी से खर्च करो या तो उस पॉकेट मनी को फिर से अपने घर में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टाइल, ये लग्जरी लाइफस्टाइल आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। पर मेहनत है, देखिए दोस्तों, हर काम में मेहनत होती है, यहाँ पर भी मेहनत है। आप कितने भी अगर हम देखें कि जॉब करते हैं लोग, लाखों कमाते, 70-80,000 की सैलरी होती है, फिर भी हम किसी रिसोर्ट में जाते हैं तब हम थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, भाई 30,000 थोड़ी ना। और मैं बोल सकता हूँ यार नहीं करेंगे 30,000 के लिए, हम तो पे नहीं करेंगे एक रात सिर्फ सोने के लिए, बट कंपनी करते हैं। दैट्स अ 5 स्टार लोकेशन। चेयरमैन बोनस, ये लास्ट पॉइंट है।
यानी कि यहाँ से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी निकल जाएगा। चेयरमैन बोनस यानी कि दिवाली बोनस, कंपनी 175 प्लस कंट्रीज में जितना भी टर्नओवर को जनरेट करती है उसमें से 3% कंपनी फिर से आपको देती है एज अ दिवाली बोनस। हमारे जो मेंटर है मिस्टर साइमन डेविडसन, उन्होंने कुछ चेक्स को क्वालिफाई किया था, 2014 में उन्होंने किया था, 2012 में उन्होंने किया था। 2014 की उनकी चेक की प्राइस है 1,47,000 यूएसडी डॉलर, नॉट एनी इंडियन रुपीज। लाखों खर्च करने के बाद हम यूएसए पढ़ने के लिए जाते, बाहर पढ़ने के लिए जाते, क्यों जाते? क्योंकि वहां पे अगर जॉब लग गई, सैलरी आएंगी यूएसए में, यूएसडी डॉलर में आएंगी, और डॉलर का रेट हमारे इंडिया से ज्यादा है, तो सैलरी ज्यादा होगी। इंडिया में बैठे बैठे कंपनी बोल रही इनकम ही क्यों अर्न करना है, दिवाली बोनस भी अर्न करो, जो कि करोड़ों में होता है। जैसे 2014 में सर ने अर्न किया था लगभग 1.5 करोड़ का, 2012 में उन्होंने लगभग 2 करोड़ का चेक अर्न किया था, 2016 में उन्होंने अर्न किया था 91,000 यूएसडी डॉलर, हार्डली कम्स टू 80 to 85 lakhs। 2011 में उन्होंने फिर से क्वालिफाई किया था 93,000 यूएसडी डॉलर। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक डाउट आ सकता है जो मुझे आया था स्टार्टिंग में, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को आ रहा होगा तो वेल एंड गुड, मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से सेशन को देख रहे हो। मेरे को क्या डाउट आया था पता है, मैंने साइमन से एक सवाल पूछा था, ठीक है सर आपके बहुत बढ़िया चेक है, आपने अचीवमेंट्स करी हुई है, बट ये जो चेक्स की डेट मुझे दिख रही है वो है 2011 है, कुछ 2016 है, कुछ 2018 का आप बता रहे हो, मुझे कंपनी का 2020 का कोई रिकॉर्ड बताना कि जहां से मैं देख सकता हूँ कि सच में कंपनी में पावर या नहीं। चेक की डेट देख सकते हो 10 अप्रैल 2021, यानी कि इसी साल के चेक है। 2020 में भी कोविड है, बाहर कुछ भी पैंडेमिक है, फॉरएवर को कुछ नहीं नुकसान है, बिकॉज फॉरएवर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कैस्टिज कंपनी है, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी का ओनर वहां पे नहीं है, पूरे के पूरे कंपनी के खुद के पैसे। आप देख सकते हो रोहित अरोरा, उनकी एज की बात करूँ तो जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, उनकी चेक की प्राइस है 60 to 65 lakhs रुपीज समथिंग, नो इट्स 55 lakhs, अगर आप उसे 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स 55 lakhs। इन दोनों की चेक की बात करूं तो वहां पे आप डेट देख सकते हो 10 अप्रैल 2021, एज इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, 84,000 यूएसडी डॉलर, यानी कि हार्डली 63.47, हम बोल सकते हैं 63.50 lakhs का चेक एज अ दिवाली बोनस। एक जॉब बताओ, एक प्रोफेशन बताओ मुझे कि जहां पर 21 साल के लड़के को पैकेज मिल सकता है 63 lakhs का। मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ, मैं तो मंथली की बात भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक दिन की सैलरी की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पैकेज बताओ कि मुझे 63 lakhs मिलेगा, नहीं मिलता। दिवाली बोनस सिर्फ 63 lakhs रुपीज, मंथली इनकम अलग से, कार प्लान, हाउस प्लान, वो सारी चीजें अलग, ये चीज अलग, टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम 63 lakhs रुपीज। अब हम बात आते हैं, सारी चीजें हो गई सर, देख लिया, बढ़िया बिजनेस है, करेंगे कैसे? हमें तो कुछ नहीं पता, बिकॉज मैंने आपको बताया था लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, पैसे नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, गाइड करने के लिए कोई नहीं है, फेलियर का डर है, टाइम लगेगा, कैसे होगा? मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। फ्रीडम ग्रुप आपको एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड करेगा कि जहां से आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को भी इस्तेमाल करके बिजनेस कर सकते हो। यानी कि मैंने आपको जो ये चेक्स दिखा है ना 63 lakhs एंड 84,000 यूएसडी डॉलर, उन्होंने भी सोशल मीडिया का यूज किया हुआ है, सोशल मीडिया का यूज करके ही हमारा बिजनेस बिल्ड होता है, बिकॉज इट्स अ डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग में आपको 3 दिन की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है एडवांस से पहले, और उसके बाद आपका लेवल क्वालिफिकेशंस और सारी चीजें क्लियर करके 5 days की आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी, जहां पर आपको प्रॉपर स्किल्स बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। एक प्रॉपर एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके से आपकी जर्नी होगी, किस तरीके से हमें लेवल्स को क्वालिफाई करना है, किस तरीके से हमें 7 से 8 महीनों के अंदर अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना है। आपके अंदर बहुत पैशन होगा, मेरे अंदर भी पैशन है, हर बंदे के अंदर अलग अलग कोई भी पैशन होता है, उस पैशन को अपने अंदर ही नहीं रखना है, उस पैशन को बाहर निकालना है, सोशल मीडिया की हेल्प लेनी, खुद का ब्रांड बिल्ड करना है, एंड वी हेल्प यू टू फाइंड योर पैशन एंड कन्वर्ट इट इनटू योर ब्रांड। एक बहुत सारे लोग मुझे ना सवाल पूछते हैं कि आपने 18 के साल में 2 महीनों में इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कर लिया, आप इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कर रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात कर सकते हो, आप किस तरीके से लोगों को इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, क्या ऐसा आपने किया? मैं एक ही बताता हूँ कि मेरे पीछे और फ्रीडम ग्रुप के पीछे एक ऐसा इंसान का हाथ है ना, कि जिन्होंने इस बिजनेस को सबसे पहले शुरुआत किया था, जो कि थे इंडियाज लिविंग लेजेंड, उन्हें कहा जाता है इंडियाज लिविंग लेजेंड, मिस्टर साइमन डेविडसन इज माय मेंटर। मैं कहता हूँ उस इंसान का हाथ है, उस इनकी पर्सनल मेंटरशिप आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर देते हैं हम, ताकि आपकी बिजनेस में ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से हो। पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम इंडियाज लिविंग लेजेंड मिस्टर साइमन डेविडसन। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नहीं बनाना कि आ जाइए फ्रीडम ग्रुप में काम कीजिए, फ्रीडम ग्रुप में जॉब कीजिए, नहीं, मुझे एम्प्लॉय नहीं बनाना है, मुझे बनाना है आपको लीडर। लीडर वो होते हैं जो एक दूसरे को साथ में लेकर के सब साथ में आगे बढ़े।
कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी यहाँ पे इंप्रूव की जाएगा, माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, पैसिव इनकम किस तरीके से अर्न करना है, सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से ब्रांडिंग करनी है, पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेवलप करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर सिखाई जाएगी। बट वी डोंट वांट योर मनी। बहुत सारे लोगों को लगेगा यार इतना सारा दे रहे, पैसे तो दबा के लेंगे। वी डोंट वांट योर मनी, वी जस्ट वांट योर कमिटमेंट एंड एफर्ट, बिकॉज ये बिजनेस आपका है, आपको करनी है सारी चीजें। हम तो सिखाने वाले, गधे को घोड़ा नहीं बनाना है हमें, जस्ट हमें घोड़े को एक क्लियर डायरेक्शन देनी, जिस घोड़े को दौड़ना है। फिर वो दौड़ना है नहीं दौड़ना है आपके ऊपर। वैसे ही तो मैंने आपको बताया 80% काम में हम कर लेंगे, फॉरएवर ने 80% करके रखा है, 20% तो आपको करना है, 10% इम्प्लीमेंटेशन और 10% डिसीजन। क्या मिलेगा आपको अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया? छोड़ना तो नहीं है, ग्रैब ही करना है। एक्स्ट्रा इनकम सेकंड सोर्स के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे कि जो जॉब के साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देखने के लिए आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सेकंड सोर्स छोड़ दो, 12th सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। कितने? 12th सोर्स ऑफ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रूप से विथ लग्जरी लाइफस्टाइल, जो आप कितने भी कमाओ आप नहीं जाते, बिकॉज सेविंग भी करनी होती है। फ्यूचर में क्या होगा, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, दिन में अगर 5 दिन में 1.5 लाख रुपए सिर्फ लेने रहने के लिए अगर हम दे देंगे तो क्या होगा? बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फॉरएवर बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ आ जाओ, क्वालिफाई कर रहे हो, हम प्रोवाइड कर देंगे रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब पता है? जो ऑथर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जिन्होंने एक ही बार काम कर देते, जैसे अभी थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, उसके जो राइटर है, उन्होंने एक ही बार वो बुक को लिख दिया, बट अभी तक वो बुक लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक वो बुक खरीद रहे हैं, यानी कि उनको भी कुछ परसेंटेज जा रहे हैं ना, उनके फैमिली को जा रहे होंगे। रॉयल्टी इनकम। यू कैन डू बिजनेस 175 प्लस कंट्रीज एनीवेयर, कहीं पर भी करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। बट एक है कि वहां पर फॉरएवर का ऑफिस होना चाहिए, और 175 प्लस कंट्रीज में तो हमारे ऑफिसेस है। फैमिली इनहेरिटेड बिजनेस है, कल आप रहो या ना रहो, आपका बिजनेस बिल्कुल सुरक्षित है, बिकॉज आपका बिजनेस आप जिस भी लेवल पे होगी, जितनी भी इनकम होगी, एज इट इज दी जाएगी आपके नॉमिनी को। जॉब में नहीं होता है। जॉब में अगर आप नहीं भी रहे, रिसेंटली आपकी लगे जो भी पोजीशन होता है वो क्विकली फिलअप की जाती है नए कैंडिडेट्स के साथ, फिर फैमिली को क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप रहो ना रहो, आपका बिजनेस पूरे तरीके से इनहेरिटेड है। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड है। 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, हॉबी की तरह करो, आपकी मर्जी है कैसा करना है, बिकॉज पैसे तो आपको कमाने, मुझे तो नहीं कमाने। दैट्स ग्रेट। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, हर बंदा मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म में ना कम से कम 2 या 3 घंटे तो वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रोलिंग करते हैं, 2 या 3 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, बिकॉज उन लोगों का काम है वो हमें दिखाते ही रहते, चीजें हम देखते ही रहते हैं। वेस्ट होता है। क्या करना है? आज से उसी टाइम को यूटिलाइज करना है, ट्रेनिंग करनी है, सीखना है चीजों को और इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। नेटवर्क की तो पावर आपको पता चली चुकी होगी, बिकॉज ये रिसेंटली हुआ था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तीनों के तीनों सर्वर डाउन थे। कितना तो करोड़ों का उनका लॉस हुआ है फेसबुक वालों को। क्यों हुआ है? नेटवर्क की पावर है बाबा। अगर लोग ही उनके अगर साइट्स पे नहीं जाएंगे तो उन लोगों का बिजनेस फ्लॉप है, पूरी तरीके से फ्लॉप है। सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सीरियस लोगों के लिए बिजनेस है, जिन लोगों को टाइम पास करना है, जिन लोगों को लक को आजमाना है, लॉटरी माइंडसेट से आना है, प्लीज को यहाँ पे नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है, 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, यानी कि चीजों को सीखना है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है क्या चीज है, कैसे होना है, इन डेप्थ में जाना है। हर चीज के इन डेप्थ में जाने के बाद ही आपको स्टार्ट करके दिया जाएगा। एक्शन प्लान प्रिपेयर होंगे, आपको जर्नी को यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो। ज्वाइनिंग फीस नहीं लेंगे, रिन्यूअल फीस नहीं है, स्टार्टर किट नहीं है। अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आप आईफोन यूज करते होंगे तो आप ऐप स्टोर पे जाइए, माई फॉर इंडिया ऐप को डाउनलोड करो। करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करो। हमारे जो भी लीडर्स होंगे जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया होगा, दे विल प्रॉपर गाइड यू किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। वो सारी चीजें, केवाईसी कंप्लीट करना है, किसी भी 2 consecutive months में आपको 30,000 के टर्नओवर को जनरेट करना है। 2 तरीके से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एक तो प्रेफर कस्टमर बन के 5,000 के टर्नओवर को करो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के 2 cc के टर्नओवर को करो, या तो एक ही दिन में 1.5 cc के टर्नओवर को करो। फिर प्रोडक्ट को पर्सनल यूज के लिए परचेस करो या तो रिटेलिंग के लिए करो। पर प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे तो बिजनेस नहीं होगा, ये बात मैं बता देता हूँ। और ये आज की रियलिटी, बहुत सारे लोगों को लगेगा अपॉर्चुनिटी बढ़िया है बस बहुत लेट हो गया, अब कैसे करें, टाइम नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, सब होता है सबके पास बट निकलता नहीं है। मैकडोनल्ड्स का पहला रेस्टोरेंट लगा था जब उनके फाउंडर की एज थी 52 ईयर्स। केएफसी उन्होंने लगाया था जब उनकी एज थी 65। और मुझे तो इतना तो यकीन है कि यहाँ पे जितने भी नए लोग होंगे ना भाई, आपकी जो एज है ना वो 25 से अंदर ही होगी। पूरी लाइफ पड़ी हुई है, जितना जल्दी डिसीजन लोगे ना उतने जल्दी आप लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होंगे, जल्दी फाइनेंशियली फ्री होंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बता दो, पैसे नहीं होते, फिर मैनेज भी नहीं करने होते भाई, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कहाँ से करें, पैसे नहीं है हमारे पास, बहुत रोना धोना होता है। आईफोन खरीदने के लिए बोलो, फट से निकल जाता है।
EMI करो, लोग से उधार लो, कैसे भी होगा, बट आईफोन खरीदेंगे, ब्रांड है ना, हाथ में दिखना चाहिए भाई, आईफोन यूज करते हैं। क्या है उसका फायदा, आई डोंट नो। हेल्दी ग्रोसरीज के साथ ये होता है, डिनर और डेजर्ट्स के साथ ये होता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर हम 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली एपिसोड को देखते जाते हैं, टाइम को वेस्ट करते जाते हैं। बहुत सारे लोग एक एक्सक्यूजेस देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। सोशल मीडिया यूज करते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, क्या करते हो उसके ऊपर, टाइम का यूज होता होगा, देख, और नहीं होता होगा तो भाई सीखो, टाइम है। लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस। स्टॉप ब्लेमिंग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज भरा पड़ा हुआ है, मार्केट पैसे कमाने के लिए। जस्ट दिमाग होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। जॉब करके नहीं होगा, क्रिएटिव होना चाहिए। जॉब छोड़ के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एक ही बात बताओ तो यार, आप जहां पर भी हो ना आज अपने लाइफ में, आपकी वजह से हो। नेक्स्ट 5 इयर्स में जहां पर भी जाओगे, आपकी वजह से हो गए। किसी बंदे का कोई जाता नहीं, ना मेरा जाएगा, ना साइमन सर का जाएगा, ना हमारी टीम का जाएगा। एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए। बट मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ जरूर रहेगा कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। सिर्फ बिजनेस कितने मत देखिए यार कि पैसे कमाएंगे 7-8 महीने में 1 लाख कमाएंगे, नहीं। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोजेक्ट है। चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूँ। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस पूरे जर्नी में, जस्ट गिव मी योर 8 मिनट, जस्ट गिव मी योर 8 मंथ्स। डेली आपको 2-3 घंटे देने। कमिटमेंट चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, दैट्स इट। पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, जस्ट करने की इच्छा होनी चाहिए भाई, करना है। कैसे करना है नहीं पता, मैं हूँ, साइमन सर है, हम सिखाएंगे कैसे करना है, बट करना है। अगर ये बर्निंग डिजायर होगा ना, जस्ट 8 महीने दीजिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। बट मेहनत करनी होगी, करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं आपको 80% मेरी तरफ से दे सकता हूँ, 20% तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। जो हमारे मेंटर है मिस्टर फ्रीडम ग्रुप के, मैं उनको थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। हमारे बिजनेस को उन्होंने जब 2000 में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, तब उन्होंने इस बिजनेस के साथ शुरुआत की थी। 20 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें इस कंपनी के साथ। फर्स्ट मैनेजर बने थे, सफायर मैनेजर है कंपनी में। जो कार प्लान था उन्होंने लगभग 7 बार से ज्यादा बार क्वालिफाई किया हुआ है। चेयरमैन बोनस उन्होंने 5 बार क्वालिफाई किया हुआ है। 100+ इंटरनेशनल ट्रिप्स उन्होंने क्वालिफाई की हुई है। बड़ी बात ये नहीं है दोस्तों, 100+ इंटरनेशनल कंट्रीज को विजिट करना। बड़ी बात क्या है पता है, 5 स्टार लग्जरी लाइफस्टाइल को फ्री में एंजॉय करना। बड़ी बात तो ये, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है भाई। 100+ इंटरनेशनल कंट्रीज को विजिट करना, वो भी 5 स्टार लाइफ को एंजॉय करो। वहां पे 5-5 दिन रहो, कोई खर्चे का टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 5 स्टार में रहो, 7 स्टार में रहो, पॉकेट मनी ऊपर से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। एंड दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। द सेशन इज एंडेड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, आप लोग एंड तक इस सेशन में बने रहे। एंड मैं इनवाइट करूंगा मिस सुमन को, अगर वो यहाँ पे होंगी तो। Yes, yes, I'm here. या So session was literally very very amazing. I was like, मैं तो थोड़ा सा हिली भी नहीं। अगर और यहाँ पे लोगों को कुछ डाउट्स होगा, you can ask him. He is amazing leader. थैंक यू। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज वगैरह होंगे, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नहीं तो कॉल जिस भी इंसान ने आपको कनेक्ट किया हुआ है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ही इज द राइट पर्सन। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से ट्रेनिंग को करना है, वो सारी चीजें सीखना तो पड़ेगा। लास्ट में अभी मेरे को लगता है डाउट तो किसी को नहीं है ना सुमन जी? Yes, अगर होगा तो we are here. बिल्कुल। सो नाउ Yes. इट्स टाइम टू एंड द मीटिंग। जाते जाते एक ही बात बताऊंगा यार, ये बिजनेस जो है वो गधे को घोड़ा बनाने का काम नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉसिबल। ये जस्ट घोड़े को एक डायरेक्शन देना है, जिस घोड़े को दौड़ना है अपने लाइफ में, अपने सपने की ओर दौड़ना है। मैं अपने लाइफ में घोड़ा था मुझे अपने लाइफ में अपने सपनों की तरफ दौड़ना था। मुझे डायरेक्शन देने का काम साइमन सर ने कर दिया, मैंने उस डायरेक्शन पे चलने का काम कर दिया। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम हैं, आपको हेल्प करने के लिए हम हैं, दौड़ाने के लिए भी हमें। दौड़ना है या नहीं दौड़ना है, डिसीजन आपका है। एंड दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक Yes, यू सो thank मच you so सुमन मैम। much. Yeah, yeah. थैंक यू, या बाय।